Okay, so we will start thermochemistry. Okay, so till now, what we have done is uh, heat of reaction with the help of enthalpy of formation, right? We have done heat of combustion with and heat of reaction with the help of heat of combustion. We have done bond enthalpy. Okay, these are the three main enthalpy we have done. Okay, so just to revise a little bit, enthalpy of formation is nothing but that the formation of one mole substance with the help of required amount of elements from their most stable state. Okay, so this is enthalpy of formation. Enthalpy of combustion is that energy is going to release when any element or substance you are going to burn and those elements are going to present in their most stable state. Okay, and bond enthalpy is the energy required to break a particular type of bond from gaseous molecule into gaseous atom. Okay, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ध्यान रखना है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी क्या है. ओके, तो ये तो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड आई हैव टोल्ड यू बॉम्ब कैलोरीमीटर आल्सो कि generally bomb calorimeter is constant volume, so whatever the heat is going to release, that is delta E. But if they have written let's say they have written constant pressure, then whatever heat is going to release, that is delta delta H. Okay, I hope you would have started solving those questions. Okay, now we will focus on some more type of enthalpies. So let's say, you know, then there is one thing is called resonance energy. Resonance energy comes when, okay, when Anushka, we will talk about your problem after the class. Okay. Resonance energy is going to be the energy difference between you are going to say we will talk about that. Wait. Okay. So resonance energy is going to be the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. Okay. Most stable resonating structure and resonance hybrid. है ना? This is always exothermic. है ना? And delta H is going to be negative, so I will write like this. Energy difference between most stable resonating structure. Most stable resonating structure का मतलब क्या हुआ? That is theoretical, right? है ना? And resonance hybrid. So that is going to be experimental. Correct? है ना? अब देखो, जो ये theoretical है, that is actually based on bond energy. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं. Right? If I am going to say, let's say, I'm just breaking, let's say, all the bonds of benzene. है ना? If I am going to break all the bonds, you know, this is gas. Okay, I should write C6H6. H6.
let's say gaseous molecule to gaseous atom, तो 6C gas plus है ना 3H2 sorry 6H, yes, gaseous atom, not in molecule here, है ना. This is delta H reaction, है ना, इसको हमने ब्रेक कर लिया. Now this delta H reaction is not equals to, है ना, ये किसके बराबर नहीं है. अच्छा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो this is nothing but hydrogen, 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 hydrogen. ठीक है. So if you are going to see, then what will happen? You will say how many carbon hydrogen bonds are there? 6 carbon hydrogen bonds are there, right? है ना, इसी से तो बना होगा, है ना, ये हमने, right, we are writing, but this is not equals to 6, है ना, bond enthalpy of carbon hydrogen plus how many carbon double bond? 3 carbon just 1 second. Now this is 3 enthalpy carbon double bond carbon plus how many single bond? Why this is not equal? Because this is experimental. है ना, आप एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल थोड़े ना तोड़ रहे हो. यू आर ब्रेकिंग दिस मॉलिक्यूल विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना. एंड दिस इज नथिंग बट ये होल जो हम लिख रहे हैं, दिस इज theoretical which is based on, है ना, which is based on bond enthalpies. मेरी बात समझ में आ रही है ये, राइट. अब ये हमेशा नेगेटिव होगी, है ना, अब हमेशा ये नेगेटिव होगी, तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा होगा उसमें से कंप्यूट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट. तो थियोरेटिकल में से ये, है ना, एक्सपेरिमेंटल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो वी आई होप दिस पॉइंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि देखो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है. जब एक्चुअल मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको गैसेस एटम में लेके जाएंगे, राइट, तो जो डेल्टा एच रिएक्शन आएगा वो थियोरेटिकल के बराबर नहीं होगा. थियोरेटिकली आप क्या सोच रहे होगे कि यहाँ पे, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये, है ना. तो ये जो भी एनर्जी निकली, ये आपकी निकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, थियोरेटिकल. और ये जो आप ब्रेक कर रहे हो, ये किसके लिए निकली? रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, राइट. तो इनका, तो वी कैन राइट रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट, जहां कहीं पे भी लिखा होगा, आपको याद रखना है थियोरेटिकल में बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, जहां कहीं पे भी लिखा होगा, है ना. सो दिस इज डेल्टा एच थियोरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंट. और रिवर्स, मान लो रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है आपको, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी दे रखी है, देन यू आर गोइंग टू ऐड. ठीक है. सॉरी उल्टा होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, तो ज्यादा वाला कम होगा. सो वी हैव टू राइट अपोजिट. ओके, दिस इज एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, है ना, बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव. ठीक है. तो ये तो एक बात समझ में आ गई. आप ये लिख लो, कहीं पे अगर रेजोनेंस एनर्जी दे रखी हो कहीं पे भी, तो यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. फिर से समझ लेते हैं जिनको नहीं समझा. देखो भाई, रेजोनेंस एनर्जी क्या है. रेजोनेंस एनर्जी, अगर आपको एक ग्राफ हमें याद हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बता रहा हूँ, राइट. तो मैंने रेजोनेंस एनर्जी का एक ग्राफ बनाया था कि, है ना, मॉलिक्यूल अगर ऐसा है तो उसमें H2 से रिएक्शन कराऊंगा, है ना, तो ये ऐसा हेक्सेन बनेगा. और अगर मैं ऐसे कराऊंगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल को कराऊंगा, तो भी हेक्सेन बनेगा. ये मैंने कैलकुलेट किया था, है ना, हेक्सीन से. हेक्सीन में एक बॉन्ड का डिहाइड्रोजनेशन करके हेक्सेन में गया, तो कितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ होगा. 3 बॉन्ड होंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा. तो इस तरह से मैंने
इनके बीच का डिफरेंस निकाला था, राइट। तो यहाँ पे बस यही है, यहाँ पे जो डेल्टा एच है इसके बेसिस पे निकाल लेंगे। व्हाट इज आर एस, व्हाट इज आर एच? हाइब्रिड, अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ओके, यस यस यस। आप निकालोगे कैसे? वही तो है ना, एक्सपेरिमेंटल यहाँ लिखा है, इसका मतलब यही तो है, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो आपको इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो मुझे ये डायरेक्टली नहीं दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, मुझे कहीं कहीं पे ऐसे दे रखा है, राइट, कि C2H4 दे रखा है। C2H4 में C डबल बॉन्ड C H H H H है, और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। तो कैन आई राइट कि एक 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो 4 एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट, ऐसे कुछ दे रखा होगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग। ऐसे ही किसी और का भी दे रखा होगा, मान लो C3H6 का दे रखा हो, है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया, राइट, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट। सो सम टाइम दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली, ठीक है, दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे भी देख लोगे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो 6 हो गए। देन एक्स वाई है ना, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे करके इक्वेशन बना बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। कि कई बार ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दे रखा है, ये इनडायरेक्टली भी आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी हो सकती है, बस आपको सॉल्व करना होगा एक्स और वाई लगा के, तो ठीक है। चलते हैं अब आगे। तो ये रेजोनेंस एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट तरह की एनर्जी, रेडिंग स्ट्रक्चर के बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? तो कई बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इज, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is equals to minus 57.3 kilojoule per mole, or you can say minus 13.7 kilocalorie per mole. Or I would write, better is I will write equivalent. Equivalent, ठीक है, per equivalent. So this is fixed value. Enthalpy of neutralization क्या है? When one equivalent of strong base is neutralized by one equivalent of strong acid, है ना। इंपॉर्टेंट बात है इक्विवेलेंट, तो मैं समझा दूंगा इक्विवेलेंट क्या है, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट, राइट। इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल राइट प्रॉपर्ली। है ना। सो द एनर्जी रिलीज is called, है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखना है। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ना। फॉर एन एसिड, number of equivalent is equals to number of moles
into number of H plus ion given by, है ना, an acid in water. ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड इन वाटर. तो जैसे मैं H2SO4 बोलूंगा, तो H2SO4 2 हाइड्रोजन देता है, तो उसके एक मोल को, एक मोल का मतलब है कि there is going to be two equivalent. If we are going to write number of mole equals to 1, number of H plus ion given by an acid in water is 2, so that is number of equivalent is going to be 2. ठीक है ना. फॉर बेस, है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर बेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, number of moles into number of OH minus ion. Just 1 second. 1 second. Okay, so number of OH minus ion given by base in water. पहले तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझ में आ गया. अब ये कह क्या रहे हैं वो समझते हैं. ठीक है, लेट्स से फॉर HCl वर्सेस NaOH. तो हमने अगर HCl ना, ये एक्वस है, प्लस NaCl NaOH, दिस इज एक्वस है, right? Then we are going to, let's say, mix together. What is going to form? NaCl solid, that is NaCl aqueous, sorry, पानी में प्लस H2O लिक्विड, ये बनेगा. तो इसमें जो एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं, वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl react with one equivalent of NaOH. Fortunately HCl के लिए वन इक्विवेलेंट इसके 1 मोल के बराबर होता है, so that is 1 मोल. वन इक्विवेलेंट क्योंकि इसमें ये एक ही दे सकता है, then it is equals to 1 mole, right? If you are going to put over here number of moles 1, number of H plus 1, so number of equivalent 1. Yes, number of moles into basicity is also fine, acidity is also fine. यहाँ पे ये मैंने बस ऐसे लिख दिया, you can write basicity, acidity. So that means 1 mole of HCl will react with 1 mole of NaOH. But the thing is, you do not think about 1 mole, you always think about 1 equivalent. ठीक है, ये ध्यान रखना है. So the energy over here which is going to release delta H is nothing but है ना, delta H neutralization is right over here minus 57.3 kilojoule per mole. The enthalpy of neutralization is always exothermic, so I have not written, then I will write here always exothermic. थोड़ा और इस बात को समझते हैं थोड़ा और डिटेल में. ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो एट एनी कंसंट्रेशन ब्रेक इनटू आयंस, अपने आप उनका 100% आयनाइजेशन होता है, राइट? कोई भी HCl NaOH को अगर आप लेंगे देन दे आर ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक इनटू आयंस. ठीक है, जस्ट लाइक सॉल्ट, तो वो आयंस में टूटता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आयंस में टूटते हैं.
ये आपको ये फॉर्चुनेटली 1 मोल के बराबर है, बट आपको इक्विवेलेंट वाला बात याद रखना है, ठीक है? You have to remember equivalent. So what I am trying to say is I am trying to decode what is actual heat of neutralization, enthalpy of neutralization. So what is that? When I am writing HCl aqueous, that is nothing but H plus aqueous plus Cl minus aqueous, because this is going to break into ions, right? NaCl aqueous, then it is going to break into ions. Na plus aqueous, NaOH. ठीक है, this is HCl plus NaOH. This is nothing but it's called delta H ionization. ठीक है, this is nothing but delta H ionization, which is nothing but 0. Acid और base के लिए strong है. For strong and acid and base, this delta H ionization is 0. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना? This is nothing but NaCl. NaCl is nothing but Na plus plus Cl minus. That is also right strong, let's say, electrolyte. So this is NaCl aqueous plus H2O. So that is also Na plus Cl minus aqueous, and this is H2, right? This is delta H ionization. This is delta H neutralization you have written. This is also 0. तो हुआ क्या यहाँ पे, है ना? If I am going to write like this, ठीक है, इसमें तो can I say कि यहाँ जो Cl minus था और यहाँ जो Na plus था, ये तो यहाँ पे भी है, इनमें तो कुछ नहीं हो रहा, right? एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और दैट एनर्जी इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हेंस वी कैन से ये जो है वो ये है कि H प्लस plus OH minus whenever is going to, let's say, combine and form water, whatever energy is going to release, that is delta H neutralization. ठीक है, ये आ गई आपकी मेन बात. अब इक्विवेलेंट क्यों ले रहे हैं अब यहाँ पे, जरूरी क्यों है? क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन होंगे. जैसे H2SO4 है, उसके कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं? 2, है ना? एन फैक्टर या फिर बेसिटी 2, number of moles 1, so 2 into 1, that is 2. So number of equivalent is 2. But अगर मैं ध्यान से देखूं, then 2 is also number of moles of H plus ion. Number of moles of H plus ion, that is correct ना? तो equivalent of acid is nothing but number of moles of H plus ion. ये आपको ध्यान रखना है. So 1 mole, है ना, will react with 1 mole. Just 1 second. So 1 mole H plus ion will react with 1 mole OH minus ion, है ना, to form 1 mole water. But actually this 1 mole is nothing but 1 equivalent of acid. इसे समझते हैं मैं क्या कह रहा था. देखो भाई, H2SO4 का 1 mole मतलब इसके 2 equivalent, and that 1 mole of H plus ion, H2SO4 will give 2 mole of H plus ion. So 2 mole of H plus ion is nothing but 2 equivalent of acid. समझ में आया? राइट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख रहे थे यहाँ पे.
है ना, का 1 मोल लेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2, H2SO4 will give how many हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल will give 2 आयन, एक मोल मॉलिक्यूल will give 2 मोल H plus ion. So that is nothing but number of equivalent. So we can write this part, है ना, this is nothing but we can write number of moles of H plus ion is nothing but number of equivalent of acid and number of moles of OH minus ion, that is nothing but number of equivalent of बेस। तो इसीलिए हम यहाँ इक्विवेलेंट की बात लिखते हैं एसिड और बेस के कंपैरिजन में, है ना। और वी कैन से कि 1 मोल H plus ion will react with 1 mole OH minus ion to form 1 mole H2O, एक तरीका ये हो गया, है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 1 equivalent of acid will react with 1 equivalent of base, ठीक है, whatever energy is going to release। और यू कैन से इनडायरेक्टली कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल H2O में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। तो कहीं पे अगर 2 मोल H2O में बन रहा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसीलिए, है ना, हेंस फॉर डाइप्रोटिक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक H2SO4, if I am going to write H2SO4 1 mole over here, ठीक है, plus so I have to write 2 NaOH because I need to write 2 moles over here, will give Na2SO4 equals plus how many water is going to form here, you just see this part, 2, right, 2 mole. So what is going to be delta H reaction for this, delta H neutralization is nothing but 2 into minus 57.3 kilojoule, right, per mole for H2SO4, ठीक है। So that is nothing but minus 114.6 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये याद रखना। अगर मैंने यहाँ 1 मोल लिया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों, बिकॉज 2 मोल इज नथिंग बट 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। और यू कैन सी हियर हाउ मेनी H2O हैज बीन फॉर्म्ड, 2 मोल बने तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है पूछो, है ना, सिंपल सी बात है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। उसी बात को मैंने तोड़ के लिखा है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मतलब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस मतलब 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन। तो जब भी कभी H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलेंगे और H2O बनाएंगे तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे कभी H2SO4 टाइप एसिड दे रखा है और उन्होंने बोला बात व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो बी केयरफुल, 2-3 ऑप्शन लिखे हैं ABCD। ए में लिखा है -57.3 किलोजूल पर मोल, तो गलत हो गया। कहीं पे लिखा है -57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, सही हो गया। कहीं पे लिखा है -114.6 किलोजूल पर मोल, तो सही हो गया, है ना। लाइक दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि H2SO4 के 1 मोल से 2 इक्विवेलेंट बनते हैं H2SO4 के, तो 2 इक्विवेलेंट के हिसाब से आएगा। और यू कैन राइट द रिएक्शन, है ना, and you can check how many moles of H2O has been formed, according to that you can see। क्लियर है ये बात, किसी को नहीं समझ में आया? देखो ये सारे जो पॉइंट है ना, मैं जो बार बार बोलते रहता हूँ, ये क्वेश्चंस में आते हैं और आप अभी हो सकता है इतना लाइटली नहीं सुन रहे हो, लेकिन जब क्वेश्चन में आएंगे तो अटक जाओगे, है ना। बी केयरफुल। पर इक्विवेलेंट नहीं होगा, पर इक्विवेलेंट क्यों होगा, वहां तो 2 इक्विवेलेंट मिल रहे हैं ना, 11.114.6 से तो क्या मिल रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट।
किलो जूल पर इक्विवेलेंट के लिए 57.3 वो फिक्स है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये वैल्यू फिक्स है। यहां से यहाँ पे नोट एक लिख सकते हैं, नोट, या बाद में भी लिख लेना, है ना, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से होते आते हैं, एसिड बेस सॉल्ट is assumed to be 0। ये नोट में डाल सकते हैं, ये वाली बात, है ना। ये भी नोट है, सेकंड नोट ये हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ion is nothing but number of equivalent of acid. Number of moles of OH minus ion is nothing but number of equivalent of base. Kalyani, you can write, है ना, after, or I will send these, let's say, lecture notes, ठीक है, तब देख लेना आप। आप समझते हैं इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये जो 57.3 वाली वैल्यू है ये आई कैसे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, पानी लेंगे, है ना, जिसमें हम एसिड मान लो पहले से रखे हुए हैं, ऊपर से बेस डाल रहे हैं, राइट। ये बेस जा रहा है, राइट, मान लो इसका पहले से टेम्परेचर ले रखा है, इनिशियल टेम्परेचर, थर्मामीटर लगा रखा है, लेट्स से एक रफ, बस जैसे ही इसका जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, राइट, है ना, सेम इक्विवेलेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 ले लो, है ना, 0.5 H प्लस आयन, 0.5 OH माइनस आयन, 0.5 H2O बनाएंगे, राइट। तो बस आपको 0.5 के हिसाब से पता चल जाएगा कितना एनर्जी आ रही है, राइट। तो आपकी वो एनर्जी कैसे पता चलती है, कुछ भी हो, मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इधर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इधर से लिए आपने, ठीक है। आपने शुरुआत में टेम्परेचर ले रखा है तो आपको ये नंबर ऑफ, ये अमाउंट पता है, वाटर की हीट कैपेसिटी पता है, जैसे जैसे ये इससे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो डेल्टा एच, है ना, हीट रिलीज्ड, क्यू रिलीज्ड, नथिंग बट क्यू एब्जॉर्ब। व्हाट इज क्यू रिलीज्ड, क्यू रिलीज्ड इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज by neutralization of, है ना, एसिड और बेस, है ना, लेट्स से, एंड क्यू एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी, या फिर आप यू कैन से c डेल्टा टी, जो भी दे रखा होगा, हीट कैपेसिटी ग्राम में दे रखी है तो ऐसे nc डेल्टा टी वॉट एवर, राइट। बस आप यहाँ देख लोगे कि यहाँ पे कितना वाटर है। मान लो किसी ने बोला 500 ml ऑफ 500 ml ऑफ 0.1 मोलर, of 0.1 molar, है ना, HCl is mixed with 500 ml of 0.1 molar NaOH, तो कितना हो गया भाई वाटर, 1000 ml हो गया। 1000 ml मतलब 1000 ग्राम, जो भी डेल्टा टी दे रखा है लगाओ आंसर, समझ में आया। टोटल वाटर ऐड किया ms डेल्टा टी, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हो। मान लो ये
अच्छा लिख लेते हैं एग्जाम्पल है ना. If 500 ml of 0.1 molar HCl is neutralized by 500 ml of 0.1 molar NaOH, and if temperature is raised by T डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस सब में T डिग्री सेल्सियस है हो रहा है. What will be temperature increased if 500 ml of 0. Sorry, 250 ml of 0.1 molar H2SO4 neutralized by 500 ml of 0.1 molar NaOH. मान लो ये दे रखा है ना, आपको टी के टर्म्स में निकालना है. तो देखो इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे वाटर 500 ml और 500 ml कितना हो गया, 1000 ml हो गया. यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने हुए, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर आप देखोगे तो 500 ml मतलब 0.5 लीटर. मोल्स देखेंगे तो 0.5 है ना, और ये हो जाएगा 0.05. ठीक है, ये हो गया मोल्स, और ये दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0.05 इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे HCl है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो गए, 0.05 अगेन, फिर 500 into 0.05 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. तो अब देखो यहाँ जो Q रिलीज्ड होगा वो क्या होगा, इट इज नथिंग बट 1000 ml, तो 1000 ग्राम M है ना, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इंटू S इंटू डेल्टा T कितना है ना, रेज्ड बाई T डिग्री सेल्सियस. तो है ना, ये S1 हो गया है ना, 1 कैलोरी इन कैलोरी. इक्वेशन 1 आ गई है ना. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.025 मोल, that is also equals to 0.05 equivalent of acid. Number of equivalent of NaOH लिखेंगे तो कितना होगा, 0.05 मोल, which is nothing but 0.05 equivalent of acid, right? बट यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 750 ml है ना. तो यहाँ पे Q रिलीज तो पहले की बराबर ही होगा, बट यहाँ 750 आ गया, 1 इंटू यू डोंट नो डेल्टा टी. तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या करना है, बस ये हो गया 3 4. सो दिस इज डेल्टा टी इज नथिंग बट 4/3 T डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से क्या सीखा कि जो टेम्परेचर में जो रेज है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से नहीं है, कि आपने बस बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो अगर मान लो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चेंज कर देंगे तो भी फर्क आएगा. लेकिन ये भी बात याद रखना है कि वाटर का अमाउंट कितना है ना. आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी तरह से बराबर रख लिए लेकिन वाटर अलग अलग है, तो what will happen, the amount of temperature is not going to be same. Amount of temperature which is raising, that is not going to be same. समझ में आया. Density of water is 1 gram per ml assumed, we always assume.
ठीक है, तो सॉल्यूशन वो डाइल्यूटेड है ना बहुत, HCl H2SO4 बहुत डाइल्यूटेड है ना, तो उसके कारण बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा उसकी चेंज नहीं मानते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कौन कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो याद रखनी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड बातें हों, है ना, बिकॉज वी आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, कि उसमें कितना टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपको याद रखना है कि वाटर का अमाउंट कितना है। अगर वाटर का अमाउंट सेम है तब जाके टी वैल्यू सेम आएगी, नहीं तो यू हैव टू कैलकुलेट। टी डिग्री सेल्सियस इज डिफरेंस। मान लो किसी ने बोला कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी हो गया ना। तो मैंने वहां पे टी डिग्री सेल्सियस मान लो 2 डिग्री लिख देता, तो 2 डिग्री लिख देता वहां पे, रेज्ड बाई है ना। अब ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब यही काम हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वीक एसिड और वीक बेस में 100% आयनाइजेशन नहीं होता है। जैसे आप अगर बात करो CH3COOH, तो पूरा 1 मोल CH3COOH का पूरे CH3COO माइनस 1 मोल CH3COO माइनस और 1 मोल H प्लस में नहीं टूटेगा, है ना। वो हार्डली 5% 10% टूटता है, राइट। तो फॉर वीक एसिड, है ना, और वीक बेस, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखूं CH3COOH aqueous plus NaOH aqueous. If I'm going to write, this is weak acid, this is strong base, it is going to form CH3COONA, है ना, प्लस H2O। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो 1 मोल बन रहा है ना, राइट। तो क्या 57.3 होगा? नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो भाई यहाँ पे क्या है ना, ये कंप्लीटली, है ना, यहाँ डेल्टा H आयनाइजेशन जो है वो 0 नहीं है। दैट इज नॉट 0, दैट इज समथिंग। क्योंकि ये इसको तोड़ने में, पूरा तोड़ने में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। नॉर्मली तो 0.01 या फिर मतलब 1 मोल लेंगे तो उसका 10% ही मैक्सिमम टूटता है वीक एसिड में। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू, एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट, दिस इज नॉट 0, है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि ब्रेक करना है हमें। तो कुछ एनर्जी तो यहाँ खत्म हो गई, है ना। और यहाँ Na प्लस OH माइनस है, ये -57.3 है, ये डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है यहाँ पे। बताओ, आपने मान लो पहले कुछ 10 किलो जूल एनर्जी दी, तब जाके वो टूटा, फिर रिटर्न में आपको 57.3 मिली, तो ओवरऑल कितनी मिली? 47.3, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे भी यही होता है। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लो, अभी बस समझते रहो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, तब लिख लेना। क्योंकि क्लास पहले ही ऑलरेडी शॉर्ट हो चुकी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत, लेकिन पढ़ा स्लो रहा हूँ, राइट, लिख ज्यादा रहा हूँ, कंटेंट नहीं दिया है, लिखा है 4 बार एक ही चीज। भाई CH3COOH वीक एसिड है, वो पूरा नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो टूटेगा आयंस में। वीक एसिड वीक बेस 100% आयनाइज नहीं होती है, अब आपको बताया भी क्या होगा, है ना। वीक एसिड वीक बेस क्या है?
राइट। वीक एसिड वीक बेस 100% आयनाइज नहीं होते। तो उसका मतलब क्या है, पहले आपने कुछ एनर्जी दी, मान लो 10 किलो जूल एनर्जी दी, 10 किलो जूल एनर्जी दी तो पूरा एक मोल H प्लस आयन मिल गया, पूरा एक मोल OH माइनस मिल गया। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी निकालेंगे, -57.3 किलो जूल पर मोल, करेक्ट। बट यहां से यहां पहुंचे और यहां से यहां पहुंचे, ये है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। तो बताओ यहाँ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन 57.3 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कुछ होगी, राइट। मान लो यहाँ 10 मानी थी, तो 10 -57.3 तो कितना आएगा, 47.3। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। यस, मैं नुपुर, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा एच आयनाइजेशन इज नथिंग बट, है ना, डेल्टा एच आयनाइजेशन इज नथिंग बट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन माइनस -57.3। So this is plus 57.3। फिर पहले ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा एच आयनाइजेशन -57.3, दिस प्लस दिस, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में 0 था, तो यहाँ पे क्या था, ये -57.3 और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बराबर आ गए थे। बट हियर यहाँ पे ये 0 नहीं है, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, प्लस का मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो डायरेक्टली लिख लिया, नथिंग बट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। So delta H ionization is nothing but delta H neutralization plus 57.3। अंडरस्टूड। इसको ना आए समझ में बता दो भाई। तो क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, है ना, गिवन, एक्सपेरिमेंटली गिवन। सब जगह 57.3 नहीं होगा, because the ionization cannot be zero, some energy is given, overall change cannot be -57.3, करेक्ट प्रियंका, है ना। This is delta H neutralization of weak acid, right? Weak acid, or you can say delta H reaction. Somewhere you can write like this also. इस न्यूट्रलाइजेशन से और इस न्यूट्रलाइजेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक मतलब एसिड को वेस्ट से न्यूट्रलाइज करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, NaOH plus HCN gives NaCN plus H2O, एंड यहाँ डेल्टा H लिखा हुआ है -12 किलो जूल पर मोल, है ना। मान लो ये लिखा हुआ है, फाइंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ HCN। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ HCN, दिस, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है -12 plus 57.3। So delta H ionization is nothing but -12 plus 57.3, 45.3 kilojoule per mole। CN है, CN, sorry, CN।
दिस कैन बी यूज्ड इन एनी वीक एसिड के केस, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी ये रिएक्शन दे रखी है उसका न्यूट्रलाइजेशन है। यहाँ स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लिखना है, 57.3 57.3 तो जीरो आ जाएगा, है ना। एंड बी केयरफुल, वैल्यू कैलोरी में भी दे रखी हो सकती है। यहाँ पे मान लो आपने, है ना, कैलोरी में पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में यहाँ 13.7 आ जाएगा, राइट। मैंने पहले ही लिखा हुआ 57.3 इज नथिंग बट 13.7। अगर इस रिएक्शन में 1 मोल नहीं होता तो भी भाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन तो 1 मोल के लिए पर मोल आती है ना। उसका उसका लेना देना ही नहीं है कितना होता। अगर किसी ने पूछा होता कि बताओ कितना यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, राइट, न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इज गिवन, मान लो, तो आप 1 मोल के लिए ये एनर्जी निकालते, मान लो ये 20 है लेट्स से, तो न्यूट्रलाइजेशन आता -13.7.3 पर मोल, अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 होता तो, या फिर पर इक्विवेलेंट, ठीक है, राइट। अगर n मतलब इसका यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन इज समथिंग डिफरेंट तो आता -37.3 आ गया, राइट। फिर क्या करते, मान लो उसने लिख रखा है 0.2 इक्विवेलेंट, तो एक इक्विवेलेंट के लिए -37.3, तो 0.2 इक्विवेलेंट के लिए कितना, तो आप यूनिटरी मेथड निकाल लोगे, उससे निकाल लोगे। चलो भाई, ये तो हो गई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आता है इसमें एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है एटम, है ना, एनर्जी required to convert 1 mole molecule into, है ना, gaseous atom। ना, this is not, यहाँ पे एक molecule है, not gaseous molecule। So let's say if somebody has written like this, H2O liquid, then I am writing, let's say, that is going to break into 2H gas plus O gas. So that is delta H atomization. It is represented as like this. That is also going to be positive because you are converting something into gaseous atom, so you have to give the energy to make it into gaseous atom. So that is delta H atomization of H2O over here, ठीक है। This can also be, जैसे मान लो कार्बन सॉलिड है and then you are breaking into carbon gas, then this delta H atomization, सॉलिड का मतलब ये ग्रेफाइट है, राइट, लेट्स से, या डायमंड है, व्हाटएवर, ठीक है। So this is going to be carbon graphite, which can also be equals to delta H sublimation, sublimation energy. So be careful, sometime they will write in different form, है ना। आपको बस ये याद रखना है, convert 1 mole molecule into gaseous atom, बस। तो सॉलिड के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ Na सॉलिड लिखा है, तो ये Na गैस बनेगा, यहाँ गैस बनना है, गैसेस एटम बनना है। तो डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज नथिंग बट सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, है ना। बट this is not always going to be, है ना, सब्लिमेशन। यहाँ पे ये सब्लिमेशन नहीं है,
अगर मान लो यहाँ मैंने CH4 गैस ले लिया है, राइट, एंड दिस इज ब्रेकिंग इनटू कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, then this delta H atomization of CH4 is nothing but 4 times bond enthalpy of carbon hydrogen. ठीक है, क्योंकि हम ये गैसेस मॉलिक्यूल से ला रहे हैं गैसेस एटम में, तो ये इसके बराबर है. सो दिस कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, सब्लिमेशन भी आ सकता है, नॉर्मल बॉन्ड एंथैल्पी भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि H2 गैस दे रखा हो and it is breaking into 2 hydrogen gas, delta H atomization of H2 is nothing but bond enthalpy of hydrogen. ये भी हो सकता है. So it could be anything. It depends on what is given over here, not hypothetical. All are theoretical ना, तो मतलब कहाँ पे यूज होगा, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ जैसे कहाँ पे यूज होगा, ये है ना एटमाइजेशन का. जैसे किसी ने कहा, let's say if I'm going to give you example. I have written carbon solid plus O2 gas is going to give you CO2 gas, and you have to find this delta H formation of CO2. You don't know what it is. Given that, है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एटमाइजेशन ऑफ कार्बन दे रखा है, ग्रेफाइट मतलब, ठीक है. आपको ये बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है या डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ O2 दे रखा है, राइट, और आपको ये बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, ठीक है. तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ना, और आपसे पूछा बताओ फॉर्मेशन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, राइट. समझ में आया. तो एटमाइजेशन का कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के आते बहुत सिंपल है, बट आपको क्या करना है, या तो भाई आप पहले 2-3 रिएक्शन लिख के डिजायर्ड रिएक्शन लिखाओ. ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम, है ना, ये डायग्राम ड्रॉ करके देखना है कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये वैल्यू लिख पा रहे हैं, कहाँ पे जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आते हैं, लेंदी. थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन इजी आते हैं, हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े होते हैं इसलिए बच्चे डर के नहीं करते हैं, बहुत इजी होते हैं. और दूसरा है आपको बस ये डायग्राम, जिसने ये डायग्राम ऐसे बनाना चालू कर दिया, उसने ये फिट करना चालू कर दिया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, उसको मैच करना चालू कर दिया, आंसर तुरंत आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. मुझे ये निकालना है, राइट. मुझे दे रखा है कि कार्बन CO2 क्या बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, तो मैं इसको तोड़ लूंगा कार्बन और ऑक्सीजन गैस में, गैसेस मॉलिक्यूल से गैसेस एटम. मुझे यहाँ सब एटमाइजेशन दे रखा है कार्बन का, मुझे यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, या फिर एटमाइजेशन ऑफ O2 दे रखा है, या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ये दे रखा है, राइट. ये सब दे रखा है क्वेश्चन में. कैन आई कैलकुलेट दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस, चाहे आप इधर से इधर जाओ, चाहे आप इधर से इधर जाओ, है ना, आप यहाँ पहुंच गए. या फिर आप सोचो यहाँ से इधर जाओ, उसका उल्टा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस. So anyway, try to draw this diagram, this type of diagram. समझ में आया. कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई, आई विल टेक अ पोल. आज की क्लास समझ में आ रही है, यस और नो, तो ये है जिसको आज की बातें समझ में आ रही है, यस, नहीं आ रही, नो. बहुत बढ़िया, 80 to 85% लोगों को समझ में आ रहा है, तो वेरी गुड. आई एम एंडिंग द पोल. इतनी बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे. एटमाइजेशन आगे समझ में. नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन.
सर वो एटमाइजेशन के यूज में किसको ऐड करना है, किसी को ऐड नहीं करना है, क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, जस्ट फॉलो द डायग्राम ना, एरो को फॉलो करो, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस ये ऐड होंगे, और इधर से इधर इधर गए तो ये दिस प्लस दिस ये ऐड होंगे, फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस दिस, इससे आ जाएगा आंसर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो कोई वन मोल सब्सटेंस को लो और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दो, वॉट एवर एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज और एब्जॉर्ब, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो कैन बी पॉजिटिव और negative, so it could be positive or negative. 1 mole of solid substance, or one mole of substance, not necessarily solid, 1 mole of substance dissolve in specified amount of water. Water is called enthalpy of solution. अब स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर, ये पहली डेफिनेशन है ना, ओल्ड डेफिनेशन, इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर बोला गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपने स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 1 मोल सब्सटेंस डाला, मान लो KCl, 200 मोल वाटर के साथ डाल दिया, 200 मोल वाटर का मतलब कितना हो जाएगा, 200 इंटू 18 18 3600 3.6 लीटर, मान लो ऐसा कुछ डाल दिया। किसी ने मान लो 100 ही डाला, किसी ने 50 ही डाला, तो बहुत सारी एनर्जी आ जाएंगी, तो कंफ्यूजन होने लग गया। तो इसमें क्या किया, न्यू यूजुअली specified amount of water is taken as infinite dilution, है ना। That means we will add, है ना, we will keep on adding water till, है ना, the energy release or absorbed will not change, till energy of solution will stop changing. That is infinite dilution. क्या कह रहे हैं समझते हैं। मान लो 1 मोल डाला, 10 मोल वाटर के साथ कुछ एनर्जी रिलीज हुई, जैसे HCl को आप पानी में डालो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। मान लो 200 में 20 में डाला, थोड़ी और हुई, 330 में डाला, 40 में डाला, तब तक डालते गए पानी को जब तक वो वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए एनर्जी रिलीज। मान लो हमने 200 डाला, 200 डालने के बाद एनर्जी की वैल्यू आई लेट्स से -30 किलो जूल समथिंग, फिर हमने 210 डाला तब भी 30 आई, 220 डाला तब भी 30 आई, तो हम बोलेंगे दैट्स इट, जो भी ये 30 आ रही है दैट इज अवर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में। हाँ ना, यस, है ना, फिर से समझ लेते हैं भाई। मान लो उल्टा, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आप ले लो, पानी डाला ठंडा हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ा और पानी डाला, राइट, अभी भी थोड़ा और ठंडा हो रहा है, जो भी है। आप एक पर्टिकुलर टाइम तक आप देखते गए कि कब तक उसका आपने थर्मामीटर लगा लिया, है ना, कब तक ठंडा होता जा रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, मान लो आप पानी ऐड कर रहे हो, तो आप स्टॉप हो जाओगे, आप बोलोगे ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज आया है उसके हिसाब से आपने निकाल लिया,
right? You have at that point you have taken, let's say, how much water you have added, right? तो उसको आपने बोला कि अब इस उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन की और आपने बोला इसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब होना बंद हो गई, ठीक है? दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पहले स्पेसिफाइड अमाउंट में प्रॉब्लम थी कि हर जगह अलग अलग स्पेसिफाइड अमाउंट हो सकते थे, सो दैट्स व्हाई दिस इज टेकन। हाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड, इसको लिखते कैसे हैं? इसको एक्वस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इतना पानी में डाल दिया, दैट इज रिटन एज एक्वस। तो जैसे मान लो NaCl सॉलिड, आई एम गोइंग टू राइट, है ना, मान लो एग्जांपल KCl solid plus 200 H2O liquid, that is going to form KCl aqueous, that is nothing but ये 200 मोल, 1 मोल KCl 200 मोल वाटर के साथ जब कंबाइन होगा, राइट, तो ये KCl aqueous बनाएगा। इसका मतलब क्या है? अब इसके बाद, है ना, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव एडेड, अब इसके बाद एनर्जी चेंज होना बंद हो गया, राइट? So this is delta H over here is comes plus 18 point something, let's say kilojoule per. So this is nothing but enthalpy of solution of KCl. अगर मैं CaCl2 की बात करूं, so 400 H2O liter, then it is going to give CaCl2 aqueous. ये डिसाइड कैसे होगा? वही आप डालते जा रहे हो, किस पॉइंट पे जाके, है ना, आपका मैक्सिमम एनर्जी जो भी रिलीज होना था या एब्जॉर्ब होना था वो आ गया। ये वैल्यू आती है -17.5.3 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे ये एंडोथर्मिक है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है? वन, मान लो एक डाइल्यूटेड से दूसरे डाइल्यूशन में जाओ, वॉट एवर एनर्जी इज गोइंग टू चेंज। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ KCl solid dot 50 H2O, sorry, not solid, KCl dot 50 H2O। 50 H2O का मतलब क्या है? ये इसके साथ जुड़े हुए, है ना, ये एक सॉल्यूशन है ऑलरेडी, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, मान लो 100 या 150, मान लो 50 लिख लेते हैं, 50 H2O डाल दिया, अब तक KCl dot 100 H2O तक, ये सॉल्यूशन 2 हो गया। तो whatever delta H will come, that is going to be delta H dilution। क्लियर है? एक पॉइंट, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में गए, whatever energy will change, that is going to be enthalpy of dilution। Next, enthalpy of hydration। है ना, enthalpy of hydration is generally negative। डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या है भाई? एक सॉल्यूशन है, मान लो, है ना, 1 मोल KCl आपने 50 H2O का मतलब कितना हुआ? 50, 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, तो 900 ml में है, ये कंसंट्रेशन हो गई, इसमें थोड़ा और 900 ml और डाल दिया, है ना, तो 1800 ml आ गया। तो जो भी एनर्जी चेंज आएगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। में आया विनव? अभी आ रहे हैं ना सब पे? हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन सब पे आ रहे हैं ना? हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन है व्हेन 1 mole of anhydrous salt is added to
to specified amount of water to make hydrated salt. Specified amount of water का मतलब क्या है, जितना उसका water of crystallization है, so that it is going to become hydrated salt. That is going to be enthalpy of hydration. जैसे मान लो CuSO4 solid plus 5 water, now liquid is going to form CuSO4.5H2O solid. Then whatever energy is going to release, है ना, that is hydration. ये निकल के आती है -78 point something. एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो. अभी मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो रही थी, राइट? आप पानी डालते जा रहे थे ना, एक पॉइंट पे आपको ऑलरेडी पता है इतनी एनर्जी रिलीज हुई, आपने और पानी डाला और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए, तो वहां और कुछ एनर्जी चेंज आ गई ना, तो जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन. प्रियंका समझ में आया? मान लो 0.1 मोलर HCl है, HCl को पानी में डालते हैं, कंसंट्रेटेड HCl को डालेंगे अगर पानी में तो हीट होगा, राइट? 0.1 मोलर डाला, उसमें फिर 0.1 मोलर में फिर से थोड़ा और पानी डाल दिया, उसको 0.05 मोलर डाल दिया, कुछ होगा एनर्जी चेंज, राइट? व्हाटएवर इज गोइंग टू बी दैट एनर्जी चेंज, दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. हाँ ना, समझ में आया? Now how we are going to calculate enthalpy of hydration. तो अगर मुझे इसकी हाइड्रेटेड सॉल्ट की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता हो और इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता हो, दोनों की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता हो, है ना, तो उनके डिफरेंस से मैं निकाल सकता हूँ. हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. That is, if we know enthalpy of solution of anhydrous salt as well as hydrated salt, मतलब समझते हैं, हमको ये पता है CuSO4 सॉलिड, है ना, मैं प्लस 800 वाटर डाले हमने, तो CuSO4.800H2O बन गया. दैट इज नथिंग बट, और CuSO4 aqueous, दैट इज नथिंग बट, जो भी यहाँ पे आएगा दिस इज डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड. हमको इसका भी पता है, हमने यहाँ पे 795 H2O डाले, क्योंकि भाई 800 टोटल चाहिए, है ना, 800 तक ही बस चेंज हो रही है ना एनर्जी, है ना, तो 795 डाले, तो यहाँ पे भी CuSO4.800H2O बन गया. दैट इज राइट. तो आपको ये पता है, ये पता है, ये बीच का है, सो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, आप निकाल सकते हो हाइड्रेशन. ये वैल्यू आती है प्लस 11 पॉइंट समथिंग, अच्छा आई विल टेक 1. ये वाली वैल्यू आती है 66.6 समथिंग माइनस, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस,
डेल्टा एच हाइड्रेशन कितना आ गया, -67.7 प्लस -11.1, तो ये आ जाएगा -77.8। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, राइट, इसको 7 लिख लो यहाँ पे, 78.4 आ गया है ना, ऐसा कुछ आसपास। समझ में आया? इन दोनों की सोल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पता है तो हाइड्रेशन निकाल लेंगे, कितना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगा। अब भाई जिनको डाउट है वो पूछ लो। आज हमारा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म, इस वीक में एक ही क्लास है अपनी, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री खत्म करना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा फास्ट हुआ है आई नो, बट कर लेना, मैं ये नोट्स भेज दे रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया शुरुआत से, राइट। सबसे पहले मैंने बताया, एक मिनट, नहीं अभी दो, एक फर्स्ट लॉ ऑफ खत्म हुआ, थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हुआ, अभी थर्ड पार्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 पार्ट में है, ठीक है, 2 पार्ट खत्म, 2/3 खत्म हो गया। तो मैंने क्या क्या बताया शुरुआत से, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया रेजोनेंस एनर्जी, राइट, वी नो दैट रेजोनेंस एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि थ्योरेटिकल वाली जो एनर्जी है वो बॉन्ड एंथैल्पी से आएगी, ठीक है, उसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है। थ्योरेटिकल वाली जो एनर्जी आएगी कहीं पे भी, राइट, डेल्टा एच थ्योरेटिकल, दैट इज थ्रू बॉन्ड एंथैल्पीज, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया आपको न्यूट्रलाइजेशन, उसमें याद रखना इक्विवेलेंट वाला, 1 इक्विवेलेंट, और जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको याद रखना है वाटर कितना आया, राइट, ठीक है, एम एस डेल्टा टी से। तीसरी बात इसमें याद रखनी है, जब वीक एसिड आने लग जाएंगे तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी आएगी, तो फॉर्मूला याद रखना है, राइट, डेल्टा एच आयनाइजेशन। याद रखना है कि पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो अगर कभी माइनस माइनस का उल्टा भी हो, इसीलिए लिखना है, याद रख, बताते रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है, ये हो गया। फिर बताया एटमाइजेशन, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल टू गैसियस एटम, मॉलिक्यूल किसमें किसी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, so that can be bond enthalpy, that can be sublimation, that can be anything, but this is atomization, right। फिर मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो बस 1 मोल सब्सटेंस को डालो पानी में, तब तक पानी में मिलाते रहो जब तक कि उसमें से एनर्जी चेंज होना बंद ना हो जाए, वो एनर्जी नोट डाउन कर लो, वो गई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या है, एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन से दूसरे पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन पे जा रहे हो तो एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो हो गया डाइल्यूशन। और हाइड्रेशन क्या है, एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो एनर्जी जा रहे हैं, राइट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या रहता है, फिक्स रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे FeSO4 होगा तो 6 है, MgSO4 होगा 6 है, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे भी होगा, राइट। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज 6H2O लिखना है बस, दैट इज स्पेसिफाइड अमाउंट। कैसे निकालते हैं, अगर हमें हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस दोनों की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो उसके डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ये डायग्राम बनाने जिसको आ गए उसको ये आ गया। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। एक क्लास हमें डिस्कशन की रखनी है, देखते हैं इस वीक में टाइम मिलेगा तो रखते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक में डिस्कशन की क्लास अलग से रखेंगे जो भी चल रहा है उसके अलावा, ठीक है। आई विल सेंड पीडीएफ भेज रहा हूँ, वेदाश्री पाटिल PDF भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ।